So I have cleared my JEE for BTech. Some college in Noida or Lucknow, some top colleges, I can go there easily. I was not having 20k to pay at that 8k members in my Telegram channel. ये ग्रुप्स में अच्छा नोट्स नहीं थे, ग्रुप्स और नोट्स अलग अलग चीज है. ओके, नमस्कार गाइज। अभी आपको पता होगा हमारे साथ हैं प्रथम भैया। और प्रथम भैया को आप जानते हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, कम्युनिटी हैं, इन सब के एडमिन यही हैं और यही बनाते हैं। और ये फर्स्ट बैच से ज्वाइन हैं हमारे डिग्री प्रोग्राम में और अभी ये डिग्री लेवल पे हैं। तो इनसे हम अभी तक की इनकी जर्नी, एक्सपीरियंस और बहुत सारी बातें करनी है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। और भैया आपका स्वागत है। थैंक्स, आप हमें ज्वाइन किए इस मीटिंग में और अपने नॉलेज जो शेयर करेंगे उसके लिए भी एडवांस में आपको थैंक्स कहते हैं। तो भैया हम आपसे ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और आपने ऑफलाइन थोड़ा अपनी स्टडी के बारे में बताएं, कॉलेज से, स्कूलिंग से लेकर सब बताएं थोड़ा, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। Okay. Thank you so much, Avnish, for making me the guest for this. तो मेरे लिए बहुत आभार है कि मैं इसमें आया आपके लिए. तो मेरा स्टार्ट होता है कि मैं ऋषभ अकेडमी स्कूल से मैंने नर्सरी से क्लास 12 पढ़ा. आई एम फ्रॉम मेरठ, a city in Uttar Pradesh. Near it comes in Delhi NCR. So ओके I studied in Rishabh Academy School. There I have gotten good grade, and then I thought to prepare for JEE. I have not taken a drop, but I started preparing for JEE on my own. But when I was in the 2020 batch and my all exams were done, just one exam left, which was of computer science, and COVID made it postponed. And once it got postponed, it got cancelled then. ओके So I am from that batch. So I have cleared my JEE. I have not taken any coaching for that for JEE and so on. I have cleared my JEE with some 70%. I know it is not much good, but I cleared it with EWS category. So I was ओके given opportunity to take the advance. But I know that as I am from financially weak background, so I know I could not complete the advance. I have ओके to take the drop for that, and I could not afford to take a drop. That's why I ओके thought to pursue this degree because I was having at that time when the course launched, I was having only 3000 rupees. Either I can ओके go for, I do not want to take money from my parents. I have ओके that money I have earned from my own by using Telegram groups and sharing JE material with the students for free. I have ओके I am having a Telegram group there also where I am sharing the IIT JE helps was the group name. Then there I share the Telegram IIT JEE books and resources, all the content free. But ओके there was some pirated content, so those were shared there. And later अच्छा it got dissolved, and no pirated content is there now. So after that, I have done some work there also. So with that, I earned some money, and that was around I have just 3000. With that, I can only do either apply for JEE Advanced, which was 2600 rupees at that time, and either for 3000 rupees for IITM BSc. So I ओके gone with this way and applied here. And then I got selected for NDA written also. ओके I have given NDA exams also. I was not willing to give, but my others had to give the exam. And unwillingly, I gone and gave the exam in Delhi. And by chance, I got selected in it. Written exam. I cleared the written exam for NDA. ओके Then I was देन having then I was having my SSB, and SSB also aligned with this, and IITM BS degree qualifier round. So for the ओके 1 month qualifier was going on, qualifier preparation was going on, and I was having my first TESSB on 26th October. And in those days, our qualifier was going on, qualifier studies weeks were going on. And ओके I know how I submitted the assignments there while I was ओके in Allahabad, and I submitted the assignments there. And then ओके I came back to, and then
after my giving my qualifier, I got selected for qualifier. Then gave my qualifier on 22nd November 2020. And after giving that, I have to go to some place for preparation for SSB. And I have gone there just the same day after giving qualifier. I gone at night, and then my SSB happened in December, and then I got screened out from SSB Mysore, and then started with this, and then started my taken my admission in BSc there. I was having Okay. opportunity to, even I have qualified UPTU with some 8,000 rank. So I was having opportunity to take admission in UPTU some BTech for BTech some college in Noida or Lucknow, some top colleges. I can go there easily, but I could not afford the fees even for the counseling. That was some 20K. So Oh, for that 20K, I have to pay to them for just the counseling part. And after that, it okay. can be free for me also as per the scholarship availability by government of UP. But I was not having 20K to pay at that time. Mm, So I decided to do BSc along with this IIT and BS course. So okay. I did. So I applied for BSc from Meerut College, NS College in Meerut, and there I done BSc in Physics, Chemistry, and Mathematics. Along with that, I am doing this degree. तो आपका बीएससी कंप्लीट हो गया वहाँ से? BSc कंप्लीट हो गया 2020 में ही स्टार्ट किया था BSc वहाँ से, और अच्छा, 2023 में ही उसका फाइनल ईयर के एग्जाम्स दिए हैं. आई एम पास अच्छा, देयर विद फर्स्ट डिवीजन. ओके, ठीक है, बहुत अच्छा आपने अपने बारे में स्टार्टिंग आपने बताया और अब ये बताइए कि जब आप आपने आईटीएम-बीएस में एडमिशन लिया और उसके बाद आपने फर्स्ट टाइम ही क्वालिफिकेशन फर्स्ट टाइम ट्रायल में क्लियर वो कर लिया था, या क्लियर फर्स्ट कर लिया टाइम था? ट्रायल में क्लियर हो गया था. मेरी ओके, 67% मार्क्स आए थे ओवरऑल, क्योंकि मैं इतना ओके, प्रिपेयर कर नहीं पाया था. एसबी के लिए प्रिपरेशन कर रहा था साथ में, और वहाँ ओके, जाना आना जाना, तो प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी मेरी. ना मैंने कुछ ओके, ध्यान से उससे प्रिपरेशन करी भी थी कि मैं 70 प्लस लाऊंगा या ऐसे लाऊंगा. मैंने इतनी डीपली कुछ प्रिपरेशन नहीं करी थी. नॉर्मल इंग्लिश पढ़ के गया था. स्टैटिस्टिक्स भी नॉर्मल थी आपकी 11th-12th वाली. कुछ क्वेश्चंस ओके, पार्ट था, मीन मीडियन मोड वगैरह, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बेसिक चीज़ थी, तो जेईई के टाइम भी पढ़ी थी. बाकी अच्छा, मैथ्स थी. अच्छा, मैथ्स आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन, वो बेसिक चीज़ हुँ, थी, वो भी चीज़ पढ़ी हुई थी. तो मैंने उसके लिए हुँ, इतने इन डेप्थ स्टडी नहीं करी. थोड़ा बहुत जो ओवरव्यू लेना था वो चीज़ मैंने पढ़ ली. बाकी एग्ज़ाम दिया तो उसमें स्टैटिस्टिक्स में मेरे कम रह गए थे थोड़े. बाकी मैथ्स हुँ, में, सीटी में और इंग्लिश में ठीक-ठाक थे. जिसकी वजह से ओवरऑल 67% बैठे थे, जिससे मैं 3 सीसीडी हो गया था मेरा, जिससे मैं 3 कोर्स ले पाया फर्स्ट टर्म में. अच्छा सीटी कैसा रहा फर्स्ट अटेम्प्ट आपके लिए सीटी का फेस टू फेस सीटी में मेरे को कैसा? डिफिकल्टी, क्विज़ 1 मतलब क्वालीफायर तो मेरा हो गया था. क्वालीफायर में हुँ, आई गेस सीटी में एंड स्टैट्स में मेरे थोड़े कम रह गए थे. 60 हुँ, से 60 के अप्रॉक्स मेरे सीटी में एंड स्टैट्स में मार्क्स थे, हुँ, एंड 70 प्लस मेरे आपके मैथ्स एंड इंग्लिश में थे. तो उनका एवरेज मिला के 67 बैठा था, जिसकी हुँ, वजह से मेरे को सीटी सबके फ्रेंड्स. लिए नया पड़ जा सीटी सबके लिए नया पड़ जाता है सब्जेक्ट हाँ, तो सीटी नया पड़ जाता है, लेकिन मैंने सीटी का थोड़ा बहुत एल्गोरिथम मतलब पढ़ रखा था एडवांस में, क्योंकि मैंने ओके, 12th में मेरी पीसीएम थी विद कंप्यूटर साइंस. तो उसमें ओके, सी प्लस प्लस थी. सी प्लस में बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग पढ़ रखा था, बेसिक कोड ओके, ओके, वगैरह लिखने आते थे. तो ओके, बाकी ओके। इतना इन डेप्थ नहीं पढ़ा था उसमें भी, हुँ, हुँ, लेकिन बेसिक आता था कि सी प्लस इतना एडवांस तो होता नहीं है 11th में भी, तो बेसिक था. ओके, वो चीज़ सीटी के अंदर कवर करी फिर. तो बेसिक उन्होंने जिस ओके, तरह से कार्ड से स्टार्ट किया, तो वो चीज़ स्क्रैच से स्टार्ट हुई. ओके। तो अभी ये बताइए ठीक है आपने फर्स्ट टाइम क्वालीफायर दिया और वहाँ पे आपने क्लियर कर लिया और आपने बताया कुछ समय आपका एसएसबी भी चल रहा था, तो दोनों में आपने फिर कैसे मैनेज किया वो भी आपने बताया। तो क्वालीफायर के बाद जो जो कि आपने 2020 में दिया था। या क्वालीफाई 2020 में दिया था, 22 नवंबर को क्वालीफाई ओके, दिया था, और ओके, 7 दिसंबर को आया था रिजल्ट इसका. उसके बाद एनरोलमेंट स्टार्ट हुआ था अप्रॉक्स दिसंबर के एंड में. 25 दिसंबर के अप्रॉक्स एनरोलमेंट स्टार्ट हुआ था, और हमारी टर्म जनवरी में स्टार्ट हो गई थी, जनवरी 1 और 2 से. ठीक। और जैसा कि अभी आपने बताया कि इससे पहले आपने जो कुछ टेलीग्राम पे काम किया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको प्रेरणा वहीं से मिली होगी ये ग्रुप्स या वगैरह बनाने की या या वहीं से अच्छा, ही मैंने अच्छा। स्टार्ट किया था, क्योंकि वहाँ पे बच्चों की हेल्प कर रहा था, तो दिख रहा था कि मैं किसी के लिए यूज़ मतलब किसी की हेल्प हो पा रही है वहाँ पे.
अब कुछ बच्चे, क्योंकि मैं खुद प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा था जेईई की, क्योंकि मेरे पास हुँ, रिसोर्सेज़ की कमी थी। अब जब मेरे हुँ, पास रिसोर्सेज़ मिली, कुछ गाइडेंस नहीं थी उस टाइम मेरे पास एक्चुअल, मेरे को ये भी नहीं हुँ, पता था कि जेईई के अंदर आप कॉलेजेस में जाते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है वहाँ पे, आईआईटी दिल्ली वगैरह में अ, स्कॉलरशिप अलाउड है। अच्छा, ये अच्छा, मेरे को अच्छा, तब पता चला जब मैंने जेईई का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया अपना 12th क्लास में ओके, जनवरी में। 2020 ओके, जनवरी में मैंने जेईई का जब अटेम्प्ट दिया तब उसके बाद पता चला मेरे को कि स्कॉलरशिप अवेलेबिलिटी होती है कॉलेजेस में। ओके, ओके, अदरवाइज़ मैंने सोचा था कि कॉलेज की फीस इतनी ज़्यादा है, 2-2 लाख रुपीज़, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो इसलिए मैंने भी कभी इसके अंदर लग के प्रिपरेशन करी भी नहीं, जेईई के लिए। तो उसके ओके, बाद मैंने जो प्रिपरेशन करी तो उससे मेरी रही उतनी परसेंटाइल। तो उसके बाद ही मतलब मैंने, जब एग्ज़ाम मेरा पोस्टपोन हो गया, तो मैंने स्टार्ट करा था टेलीग्राम ग्रुप, किसी और को देख के मैंने देखा टेलीग्राम ग्रुप पहले से बने हुए थे। तो उनको मैं हुँ, देख के स्टार्ट किया था अपना टेलीग्राम ग्रुप कि मैं अपना बनाता हूँ, बच्चों को आईआईटी जेईई हेल्प्स नाम से किया था कि उनकी हेल्प कर रहा हूँ उसके अंदर। हुँ, हुँ, तो मैंने उसके अंदर बच्चों को रिसोर्सेज़ प्रोवाइड करना शुरू किया। तो धीरे-धीरे करके वो मतलब जब इनिशियली था वो 300 मेंबर्स कुछ थे उसमें, और जब हुँ, एग्ज़ाम मेरे ओवर हुए तब से लेके सितंबर तक मैं उसको 8 के तक लेके आया। हुँ, 8K members in my Telegram channel, which is one channel. ओके, Then I have made Telegram bot also ओके, for IITJ resources where I have added all the ETOS lectures for all the students, ETOS lectures and content, everything. ओके, So that was all the pirated things which were already available on Telegram. I have just ओके, ordered them in such a way that students can learn from it. ओके, ओके, ओके तो वहीं और से देखा कि हेल्प मिल रही थी बच्चों को, तो बच्चे बोलते थे कि ये वाली बुक चाहिए, वो बुक चाहिए। तो मैं अलग-अलग जगह से, अपनी मतलब पढ़ाई इतनी हो पाई नहीं थी, तो अलग जगह से बुक्स ढूँढ के जैसे भी करके बच्चों को बुक्स उसने अवेलेबल कराई। तो वहाँ हुँ, से हुँ, उन्होंने हुँ, जिस तरह बोला कि मतलब बहुत हेल्प हुई, उसके लिए थैंक यू। तो उससे ये हुआ कि आईआईटी में ग्रुप्स भी बनाए आगे चल के। हुँ, 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 अच्छा, तो फिर व्हाट्सएप पे कैसे शुरू किया फिर? व्हाट्सएप पे एक्चुअली मैंने जनवरी में तो कोई ग्रुप्स बनाए नहीं थे, जनवरी फर्स्ट टर्म में। हुँ, उसके बाद मैंने उस टाइम में एक 1 या 2 ग्रुप्स में था व्हाट्सएप में, उस टाइम इतने ग्रुप्स थे भी नहीं। हुँ, 8000 बच्चों ने एनरोल किया था फर्स्ट टर्म में, और 1 या 2 ग्रुप्स थे, वो भी इतने एक्टिव नहीं थे। हुँ, तो फिर मैंने देखा कि वहाँ पे मतलब बच्चों को मैंने रिसोर्स, पहले मैंने वहाँ पे भी शेयरिंग करी रिसोर्सेज़ की। यूडेमी के हुँ, कोर्सेज़ मैंने शेयर करना शुरू किया, जिसके ग्रुप्स मेरे आज भी हुँ, चलते हैं। यूडेमी में मैंने चेंज कर दिया उनका नेम अब। तो मैं हुँ, पहले मतलब बच्चों को रिसोर्सेज़ वगैरह शेयर करने लगा व्हाट्सएप पे, हुँ, क्योंकि टेलीग्राम पे रिसोर्सेज़ आती थी, बच्चे टेलीग्राम पे अवेलेबल नहीं थे। हुँ, तो उनको रिसोर्सेज़ प्रोवाइड करना, कोर्सेज़ प्रोवाइड करना, फिर यूडेमी के कोर्सेज़ कूपन कोड के साथ जो होते थे वो प्रोवाइड करने शुरू करे। वो आईआईटी के ग्रुप्स में हुँ, शेयर करे, कुछ ग्रुप्स थे आईआईटी के, हुँ, 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 आईआईटी मद्रास वाली, तो उनके हुँ, अंदर ही शेयर करे। तो उसके अंदर भी बच्चे देखे, तो मैंने कहा कि मैंने सोचा कि अब आगे नई टर्म आई, तो नई टर्म में मैंने 1-2 ग्रुप बनाए बस, अपने टर्म वाले कोर्सेज़ के। हुँ, सेकंड टर्म जब स्टार्ट हुई थी तो मैंने 1-2 ग्रुप बनाए थे, और एक गौडे विजय था, तो उसने विजय हुँ, ने भी ग्रुप बना रखे थे, वो भी हरियाणा से है। उन्होंने ग्रुप हुँ, बना हुँ, रखे थे लेकिन वो हैंडल नहीं करता था उन्हें। हुँ, हुँ, तो हुँ, मैंने फिर अपने ग्रुप बनाने शुरू करे, तो मेरे साथ फिर धीरे-धीरे करके आदित्य धर जुड़ा, और श्री कृष्णा भैया जुड़े, अविरल पांडे जुड़ा। अविरल हुँ, पांडे भी मेरे साथ ही था, मतलब हम लोगों ने टेलीग्राम पे पहले बातचीत हुई हमारी अविरल पांडे की मेरी टेलीग्राम ग्रुप में। तो वहाँ हुँ, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स थे नहीं, टेलीग्राम के येलो वाले ग्रुप में बात हुई थी हमारी, व्हाट्सएप पे हुँ, उस टाइम ग्रुप्स थे नहीं। तो हम दोनों ने फिर व्हाट्सएप पे अविरल ने मैंने ग्रुप बनाया पहले, हम दोनों ही एडमिन होते थे, फिर बाद में आदित्य आए और श्री कृष्णा भैया आए, फिर ऋतिक भैया आए। तो हम अब वही #5 एडमिन, हम 5 एडमिन वही हैं अभी। कौन-कौन फिर से बताइएगा 5 में? 5 में मैं हूँ, आदित्य धर हुँ, द्विवेदी, श्री कृष्णा हुँ, भैया, अविरल पांडे हुँ, और ऋतिक दादा। उन्हें दादा ही अच्छा, बोलते हैं, ऋतिक मदन दादा। अच्छा, अच्छा। तो इसमें जो आपका आपके बैच के यहाँ सभी सभी मेरे बैच के हैं। अच्छा, अच्छा। तो इसमें ज़्यादातर नोट्स मैंने आदित्यधर द्विवेदी के देखे हैं, हाँ, काफ़ी नोट्स हैं। इनिशियली गगरी नोट्स बनाए थे। ये ग्रुप्स में अच्छा, नोट्स नहीं थे, ग्रुप्स और नोट्स अलग-अलग चीज़ है। हुँ, इनिशियली मैंने ग्रुप्स बनाने शुरू करे। ग्रुप्स बनाए तो उसके ओके, अंदर गगनीत के नोट्स की ड्राइव लिंक चलती थी इनिशियली, जब हमने डिग्री स्टार्ट करी थी। तो अच्छा, गगनीत ने नोट्स बनाए थे, क्वालीफाई के टाइम भी नोट्स बनाए थे गगनीत ने, और हुँ, आगे भी नोट्स बनाए। तो उसके नोट्स की ओके, ड्राइव लिंक चलती थी। उस ड्राइव लिंक के ओके, अंदर आपको कौन से नोट्स लेने हैं वो ले लो। लेकिन हुँ, मैंने फिर थोड़े टाइम बाद मैंने उसको एक टेलीग्राम बॉट के अंदर बना दिया। टेलीग्राम बॉट में ओके, आईआईटीएम बीएससी हेल्पर बॉट नाम से भी बॉट है वो वाला।
ओके, उसके मैंने बॉट बना दिए थे मैंने, जिसमें सारे नोट्स डाल दिए थे। नोट्स एंड ओके। रिसोर्सेज़ मैंने बल्कि हुँ, कोर्सेज़ की लिंक भी डाली थी, पुराने कोर्स कैसे एक्सेस करें वो सब भी डाल दिया। ओके। कैलेंडर वगैरह सब था उस बॉट के अंदर। तो वहाँ पे हुँ, मैंने देखा कि बच्चे इतने एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ रहा था उनको। हुँ, तो हुँ, फिर मैंने टेलीग्राम का ही टेलीग्राफ करके एक ब्लॉग साइट है, हुँ, telegraph.ph। तो हुँ, उसमें हुँ, मैंने फिर नोट्स डाले सारे। हुँ, उससे पहले ही ओपन नोट्स बना चुका था कुणाल। कुणाल के ओपन नोट्स भी हुँ, थे जिसपे गणित के नोट्स चले हुए थे, साहित्य के नोट्स थे। लेकिन हुँ, उसमें कुछ एरर आ रहा था कि उसमें नोट्स कभी खुलते नहीं थे, कभी कोई हुँ, और इश्यू हुँ। था। तो मैंने देखा कि टेलीग्राफ वाला उनको भी नहीं खुलता आजकल शायद। टेलीग्राम वाला क्या? टेलीग्राफ वाला साइट अभी नहीं खुलता शायद। नहीं, वो नहीं खुलती है। वो हाँ, उसकी मैंने बिटली लिंक से बनाई थी आईआईटीएम बीएससी नोट्स। जो अच्छा, अव्वल है वो मीडियम के हैं। तो मैंने हाँ, फिर टेलीग्राफ पर ही सेम चीज़ मीडियम पे रेप्लिका है, दोनों सेम है। वहाँ जस्ट कॉपी पेस्ट का ओके, काम होता है। तो मैंने सारे ओके। एंटम एग्ज़ाम था 2022 की बात है ये। एंटम हुँ, एग्ज़ाम था उससे 2-3 दिन पहले मैंने देखा कि खुल नहीं रहे थे वो। तो मैं तुरंत मीडियम में मेरा अकाउंट था, तो मैंने मीडियम पे ब्लॉग भी लिखे थे बीच में, तो उसी में मैंने जल्दी से उसको कॉपी पेस्ट करके जल्दी से वहाँ पे साइट रेडी करी। तो आईआईटीएम बीएस ओके, नोट्स कर दिया उसको। ओके, ओके। तो ठीक है, ऐसे आपने ग्रुप बनाया और 2000 मतलब ग्रुप जो एक्टिव हुए आपके 2021 से एक्टिव है? हाँ, 2021 से एक्टिव है। 2021 की मेरी लास्ट टर्म तक आते थे, सेट्स 2 था हमारे पास। अच्छा। 2021 के लास्ट टर्म में, हुँ, सितंबर टर्म में। तो उस हुँ, टाइम मई टर्म में तो मैं आदित्य से मिला ही था। तो हम लोगों ने हुँ, मैथ्स 2 वगैरह साथ में किया था। सैट्स 2 अच्छा। पाइथन बचा था हमारा, सैट्स 2 पाइथन इंग्लिश 2। हुँ, हुँ, तो उस चीज़ के लिए फिर आदित्यधर और मैं हम लोगों ने साथ में ग्रुप बनाया। फिर बाद में श्री कृष्णा भैया नेक्स्ट टर्म से हमारे साथ जुड़े, वो डिप्लोमा के अंदर चले गए थे। वो एक टर्म आगे थे हमारे से, एक अच्छा, डिप्लोमा में चले गए थे श्री कृष्णा भैया। ऋषि अच्छा, भैया अच्छा, ऋषि भैया हमारे साथ ही थे। अविरल हमारे अच्छा, साथ ही था। तो श्री कृष्णा भैया बस आगे के थे। तो फिर हमने फिर बाद अच्छा, में हमने हर टर्म ग्रुप बनाना स्टार्ट करे। सितंबर में जो हमारी पहली टर्म थी सैट्स 2 की, सबसे ज़्यादा बच्चे उसी अच्छा। टर्म में थे सैट्स 2 के अंदर, और फेल भी उसी टाइम ओह! सबसे ज़्यादा हुए थे। ओह हो, हो! अच्छा। क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट बैच था हमारा, तो फर्स्ट बैच के हुँ, अंदर टर्म 2 के अंदर सिर्फ़ वही बच्चे पहुँचे थे सैट्स 2 लेने, जिनके 4-4 हाँ, कोर्स थे। जिनकी अच्छा, सीसीडी 4 थी और वो 4 कोर्सेज़ लिए थे उन्होंने। तो 4 4-4 कोर्सेज़ ले कोर्स लिए थे। ओहो! इनिशियली क्योंकि पता नहीं था डिग्री कैसी होगी, तो 4-4 कोर्स लेके करे थे उन बच्चों ने। हाँ, तो उनकी 8 महीनों में उनकी फाउंडेशन निपट गई थी। तो फाउंडेशन अच्छा, हो गई तो वो सितंबर टर्म में डिप्लोमा में आ गए थे। डिप्लोमा में ओह! आके भी मैंने डिप्लोमा के ग्रुप्स मैंने बना दिए थे सारे एडवांस। ओके, तो मैं डिप्लोमा में आया नहीं था, लेकिन डिप्लोमा के ग्रुप्स मैंने सारे बना दिए थे उसी टाइम। जितने भी कोर्सेज़ उस टाइम ऑफर किए गए थे। श्री कृष्ण भैया ने ओके, बताया ओके। ये ग्रुप बनाने हैं, तो मैंने उन्हीं को अच्छा, देख के अच्छा, ग्रुप बना दिए थे सारे। ओके। तो उसके अंदर श्री कृष्ण भैया हम लोग ही रहते थे फिर। तो ऐसे ही हुँ, धीरे-धीरे हुँ, करके फिर हम लोगों ने, और स्टैट्स 2 के उस टाइम जब हम स्टैट्स 2 ले रखी थी, तो उसके स्टैट्स 2 के 7 ग्रुप बने थे उस टाइम। अच्छा, स्टैट्स 2 ग्रुप 1, ग्रुप 2 करके 7 ग्रुप्स थे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे। व्हाट्सएप हुँ, ग्रुप के हुँ, अंदर लिमिट थी 256 मेंबर्स की। ओह! तो 256 मेंबर्स की लिमिट के कारण ऐसे 7 ग्रुप बनाने पड़ गए थे। 5 या 7 एप्रॉक्स ग्रुप्स थे स्टैट्स 2 अभी के तो लिमिट हमारे। बढ़ गई है ना? अभी तो लिमिट अब तो ज़्यादा लिमिट हो बढ़ गई। गई है, अब तो 1000 हो गई है, हुँ, हुँ। 1025। उस टाइम तब भी 256। 2 ग्रुप बनाने पड़ जाते हैं बाद में, मैं देखा हूँ तो भी 2 2 ग्रुप ग्रुप बन बन जाते हैं, 2 ग्रुप बन जाते हैं। हुँ, हुँ, तो उस टाइम पे 7 ग्रुप बनाने पड़ रहे थे, क्योंकि हर जगह लिंक शेयर कर रहे थे, हम टेलीग्राम पे शेयर कर रहे थे बच्चों को हुँ, कि हुँ, जॉइन हुँ, कर सकते हो आप इसमें। बाकी टेलीग्राम पे हो रही थी कुछ शेयर, कुछ दूसरी जगह हो रही थी। तो जैसे-तैसे करके अपने बच्चे उसके अंदर आ रहे थे फिर। कोई हुँ, किसी को हुँ, शेयर हुँ, करता था। लिंक्स वगैरह की वेबसाइट तो हमने बाद में बनाई है। वेबसाइट तो हुँ, हुँ, आइडिया आया हमें वेबसाइट का। वेबसाइट जो आईआईटी बेस्ड कम्युनिटी देखते हो आप, उसका हुँ, हुँ, आइडिया आया हमें कि हमने पहले शीट बनाई थी श्री कृष्णा भैया ने। जब हुँ, डिप्लोमा के हुँ, अंदर आए हम, हुँ, हुँ, तो श्री कृष्णा भैया ने एक शीट बना रखी थी। जिस शीट के हुँ, अंदर उन्होंने नोट्स वगैरह की कुछ लिंक डाल रखी थी, और सारे व्हाट्सएप हुँ, ग्रुप पे लिंक थी उसके अंदर। जिसको जॉइन करना है शीट खोलो, व्हाट्सएप ग्रुप पे अच्छा, लिंक पे क्लिक करो, जॉइन कर लो। लेकिन ओके। वो फिर शीट किसी के में खुलती है, किसी के में नहीं खुलती। प्रॉब्लम रहती हाँ, है कि हाँ, शीट को साइड करो, ऐसे करो। तो फिर हुँ, हम लोगों ने सोचा कि हम क्यों ना साइट बना दें। तो हुँ, हमने फिर आईआईटीएम-बीएस कम्युनिटी नाम से साइट बनाई। हुँ, उस टाइम बीएससी कम्युनिटी किया था, क्योंकि उस टाइम बीएससी ही थी वो। ओके। 2022 के अंदर फर्स्ट टर्म के बाद हुँ, किया था हमने। 2022 के फर्स्ट हुँ, टर्म में मैं हुँ, डिप्लोमा में था। हुँ, डीएमएस हुँ, एमएल किया था फर्स्ट टर्म में मैंने।
तो उसके फर्स्ट टर्म एंड हुई थी, तो सेकंड टर्म में ग्रुप जॉइनिंग के लिए मैंने फिर साइट बना दी थी। ओके। तो हम 5 ही उसको हैंडल करते थे साइट को। उसके अंदर फिर हमने साइट बनाई, उसके अंदर धीरे-धीरे करके मॉडिफिकेशंस लाए, पहले ग्रुप की लिंक ऐड करी थी बस। फिर हुँ, धीरे-धीरे हुँ। करके और बच्चों से बात करी, उनसे ओवरव्यू लिया कोर्स का, रिव्यू दो अपना, तो उनसे रिव्यू लेके उसको भी ऐड किया उसके अंदर। अभी आप देखोगे तो हुँ। एक डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज़ में सब में रिव्यू लिखा हुआ है, कोर्स कैसा है, कैसा नहीं है। अच्छा, तो नीचे रिव्यू भी लिखा है, कोर्स लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, रिसोर्सेज़ मतलब किसने रिव्यू दिया है वो भी लिखा हुआ है हमने सबका, तो वो आपके चीज़ें। जो वेबसाइट बता रहे हो उसपे? हाँ, उस पे ही है। तो हमने नहीं देखा, देखिएगा आप लिंक में भेजिएगा, हम अटैच करेंगे इसमें देखेंगे। ठीक है, आईआईटीएम बीएस कम्युनिटी, आईआईटीएम बीएस हाइफ़न कम्युनिटी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ऐसे रहा फिर जो है अभी जो ग्रुप बन जाते हैं आप फिर अभी देखें कि मैं पुराने ग्रुप को डिलीट कर देते हैं, फिर नया ग्रुप बनता है हर साल, हाँ, हर इस टर्म चीज़ के में लिए सा भी हमें प्रॉब्लम हुई थी बीच में। हुँ, हमने पहले सोचा हुँ, कि क्यों ना एक ही ग्रुप को रहने दें, जो एक ग्रुप आपका ग्रुप बन गया उसी को रहने दें, लेकिन प्रॉब्लम क्या रही कि जो बच्चे का ग्रुप जॉइन करते हैं, लीव नहीं करते ग्रुप को। हुँ, अब हम खुद लीव रिमूव करते हैं सबको, उससे टाइम बहुत वेस्ट होता है। हमने ट्राई हुँ, किया इस चीज़ का भी कि हर बंदे को रिमूव करें, लेकिन जैसे-जैसे व्हाट्सएप ने लिमिट भी बढ़ाई, तो 30 मेंबर्स को भी रिमूव करना ईज़ी टास्क नहीं है, क्योंकि सबको हुँ, एक साथ रिमूव कर नहीं सकते, ग्रुप को डिलीट नहीं कर सकते आप। हुँ, और एक-एक करके रिमूव करना पड़ता है। एक-एक करके हुँ, 10 ग्रुप बने हुए हैं, तो 10 ग्रुप में से द 256 मेंबर्स को रिमूव करना बहुत टीडियस टास्क है। तो इसलिए हुँ, हमने सोचा कि उस टाइम पे फिर हमने उन ग्रुप्स को एज़ इट इज़ छोड़ दिया हुँ, और नए ग्रुप बना लिए। नए ग्रुप पे नई हुँ, डीपी लगानी शुरू कर दी। फिर धीरे-धीरे ओके, करके ये चीज़ मॉडिफ़िकेशंस आया कि मतलब जो ग्रुप एक्टिव रहता था उसको ऊपर कर देते थे। बाद में जिन ग्रुप का मैं एडमिन था, इनिशियली कुछ ग्रुप थे जिनमें एडमिन नहीं था मैं। बाकी जिन ग्रुप का ओके, एडमिन था मैं, तो उनको मैंने फिर ओनली एडमिन कर दिया कि जो ओके, बच्चे होंगे ही नहीं तो उसके अंदर ग्रुप मैसेज सेंड करेंगे नहीं। बाद में हमें ओके, आइडिया आया कि हमने ग्रुप की डीपी भी हटा दी। पुराने ग्रुप जो थे उनकी डीपी हटा दी। हुँ, धीरे-धीरे करके हुँ, हर हुँ, टर्म जैसे-जैसे टर्म बढ़ती गई तो हमें आइडियाज़ नए आते गए और क्या कर सकते हैं इन चीज़ के लिए, क्योंकि बच्चे ग्रुप लीव नहीं हुँ, कर रहे थे। हुँ, हमारे हुँ, मोबाइल का हुँ, स्टोरेज बढ़ रहा था, हुँ, हुँ, स्टोरेज बढ़ता है, मोबाइल लैग करता है बुरी तरह से फिर। हुँ, हुँ, कोशिश हुँ, की हुँ, फिर ग्रुप का नेम चेंज करा कि ग्रुप एंड लीव द ग्रुप नाउ, इस टाइप से चीज़ें करी। डीपी हटा ओके, दी ओके, उसकी, वो ओके, चीज़ करी कि एटलीस्ट बच्चे ग्रुप लीव करें। अभी भी ऐसे 125 प्लस ग्रुप्स हैं, जिनमें हुँ, बच्चे लीव नहीं कर रहे और लिखा हुआ है ग्रुप एंडेड लीव द ग्रुप नाउ, हुँ, हुँ, ग्रुप हुँ, क्लोज़ लीव द ग्रुप नाउ। और मैं हुँ, ऐसे कर कर के मतलब आईआईटीएम के ग्रुप्स थे कुछ, कुछ दूसरे ग्रुप्स थे। एक टाइम हुँ, मेरा ऐसा आ गया था कि मेरा मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं खुलता था। अगर व्हाट्सएप में नेट बंद कर दूँ, तो व्हाट्सएप नहीं खुलता था बिल्कुल भी। इनिशियलाइज़िंग अच्छा, लिखा अच्छा, था, लोडिंग, 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 इनिशियलाइज़िंग, अच्छा, और अच्छा, उस चीज़ को भी 15-20 मिनट लगता था, आधा घंटा भी लगता था कभी भी इनिशियलाइज़िंग में ही। ओह हो, हो! अगर मैं नेट बंद कर दूँ अपना व्हाट्सएप की वजह हुँ, से, व्हाट्सएप नेट यूज़ ना करे तो। ओह! और मेरे ग्रुप्स समझ की गया। लिमिट थी कि मैं ग्रुप्स लगभग 1000 प्लस ग्रुप्स में था मैं। हुँ, 1000 1000 प्लस ग्रुप। या ये तो 1000 प्लस ग्रुप्स में कितना ग्रुप क मतलब आईटीएम के कितना ग्रुप थे? आईआईटीएम के आप मान लो इसमें 70 टू 80% आईआईटीएम के थे। अच्छा, क्यों? एक तो क्योंकि सब्जेक्ट वाइज़ ग्रुप हो गए, सब्जेक्ट अब वाइज़ कुछ ग्रुप हो गए, फिर स्टेट वाइज़ ग्रुप बनाए। स्टेट वाइज़ स्टेट ग्रुप वाइज़ भी ग्रुप हो गए। में आया, हाँ, क्योंकि स्टेट वाइज़ हाँ, कुछ ग्रुप बने थे पहले। इनिशियली कुछ हुँ, बच्चों ने ऐसे ही बना रखे थे कि यूपी का ग्रुप है, ये मेरठ का ग्रुप है। हुँ, तो वो हुँ, चीज़ कुछ भी ऑर्गनाइज़ नहीं थी, कुछ भी ऑर्गनाइज़ नहीं था। सब कुछ हाँ, ऑर्गनाइज़ हाँ, का हमने सोचा है कि इन चीज़ों को इनिशियलाइज़ करते हैं दोबारा से ओके, इनको क्रिएट करते हैं। तो ओके, ऐसे करके फिर ग्रुप बनाया उस टाइम, स्टेट वाइज़ सारे ग्रुप बनाए। स्टेट के हुँ, बंदों को पकड़ा कि आप स्टेट के हो तो आप इस स्टेट से हो, उनको ढूँढा पहले कि कौन-कौन इस स्टेट का है। उसको हुँ, बुलाया, फिर हुँ, मैंने ग्रुप बना दिया उस स्टेट के, उनको एडमिन बना दिया वहाँ पे कि आप देखो इस ग्रुप को। हुँ, हुँ, फिर ग्रुप की लिंक डाल दी साइट के अंदर। क्योंकि हुँ, पुराने जो हुँ, ग्रुप्स थे, इनिशियली क्या हुआ था फर्स्ट टर्म में, जब हमने हुँ, स्टार्ट हुँ, करी टर्म तो नीरज दीदी थी और साथ में पुनीत सर थे। इन हुँ, दोनों जिन्होंने बात करी थी आईआईटीएम टीम से कि हुँ, हमें हाउसेस चाहिए। तो हुँ, फर्स्ट टर्म एंड होने के बाद हाउसेस स्टार्ट हुए थे। अच्छा, फर्स्ट टर्म एंड हो गई थी, तो 23 अप्रैल को हुँ, हमारे पास फर्स्ट टर्म एंड हुई थी हमारी मार्च में। तो हुँ, हुँ, उसके बाद नई स्टार्ट हुई थी मई से ही। अप्रैल मई से जो हुँ, स्टार्ट होती है, 23 हुँ, अप्रैल हुँ, को हमारे पास नोटिफ़िकेशन आता है कि आपको हाउसेस बनाए गए हैं, हाउसेस के अंदर ग्रुप्स अलॉट किए गए हैं। तो ये ओके, सारा मार्च से अप्रैल के बीच में ये सारी बातें हुई थी आईआईटीएम की टीम के साथ। तो उस टाइम ओके,
उन लोगों ने हाउसेस वगैरह बनाए, क्लब्स बनाए। हुँ, उस टाइम क्लब्स का कुछ नहीं था, बस सिर्फ हाउसेस बने थे उस टाइम। ओके। हाउसेस के ग्रुप बन गए, फिर बाद में सोचा इलेक्शन भी करने हैं उसके अंदर, फिर हुँ, इलेक्शंस वगैरह स्टार्ट किए थोड़े टाइम बाद। हुँ, धीरे-धीरे करके चीज़ें हुई। उन्होंने कहा ग्रुप हुँ, बनेंगे, ग्रुप के अंदर ऐसे ग्रुप लीडर होगा, तो ग्रुप लीडर नॉमिनेट करेगा, ग्रुप लीडर चूज़ करेगा आपके सेक्रेटरी को, डेप्यूटी सेक्रेटरी को, हुँ, वेब एडमिन को, ऐसी-ऐसी चीज़ें होंगी। ये चीज़ उन्होंने हुँ, दी थी हुँ, हमें बातचीत सारी बातचीत होने के बाद। हुँ, तो उससे पहले ही बच्चे मतलब जनवरी अप्रैल के अंदर ही अप्रैल में मतलब मार्च से अप्रैल का बीच का जो टाइम था, वो गैप था बीच में। उसी बीच जो बच्चे हुँ, व्हाट्सएप पे आ चुके थे, उन्होंने क्या करा कि व्हाट्सएप पे क्लब्स बना लिए। म्यूज़िक क्लब, अच्छा, डांस क्लब, अच्छा, अच्छा, सोसाइटीज़ तो बाद में आई, उन्होंने क्लब्स बना लिए अपने। अच्छा, अच्छा। म्यूज़िक क्लब, डांस क्लब, इवेंट्स क्लब मतलब बहुत सारे क्लब्स बना लिए सब। हुँ, किसी ने हुँ, मतलब पोएट्री का क्लब था, मतलब तो स्टैंड अप कॉमेडी का, जोक्स का मतलब बहुत क्लब थे। हुँ, तो उनके ग्रुप्स भी अच्छा, जॉइन हो गए साथ में। उनकी भी हुँ, एक शीट थी, जिस शीट के अंदर लिंक्स थी सारी, वहाँ से वो जॉइन हुँ, कर लिए। तो ओके, इस वज़ह से मेरे ग्रुप्स बहुत ज़्यादा हो गए थे कि ये मेरी लास्ट ईयर की बात है 2023 की, जब मैं हुँ, 1000 ग्रुप में था। ओहो! 1000 तब ग्रुप, 1000 ग्रुप एट लीस्ट थे, इससे ज़्यादा ही थे, लगभग 1200 के करीब हो गए थे वो। ओके, क्योंकि कुछ मैं दूसरे ग्रुप भी जॉइन करता था जो रैंडमली आपको मिलते थे कि जिसमें न्यूज़ वगैरह आती है, टेक्निकल या कोडिंग कोर्सेज़ या अलग कॉलेजेस हुँ, वगैरह हुँ, के। हुँ, हुँ, उनके हुँ। भी थे कुछ, तो आईआईटीएम के इसमें 70-80% थे, जिनमें एट लीस्ट हुँ, 50% में एडमिन मैं ही था। क्योंकि तो ये इनिशियली कहना कोई गलत बात नहीं होगा कि जो आपके द्वारा इनिशिएट किए हुए ग्रुप्स हैं, इसमें ही सबसे ज़्यादा बड़ा ग्रुप है और इसमें ही सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं हाँ, लास्ट ईयर जब और यही ऑर्गेनाइज़ तरीके से फुल हुँ, वर्किंग है। ऑर्गनाइज़ चाहिए थे फुल वर्किंग है। लास्ट ईयर हुँ, हमने कम्युनिटी आया था व्हाट्सएप का फीचर, लास्ट ईयर व्हाट्सएप ने बहुत चेंजेस करे। पहले हुँ, कम्युनिटी लेकर आया, कम्युनिटी के अंदर पहले 5000 मेंबर की लिमिट रखी, फिर 2000 की कर दी। तो अच्छा, 5000 की जब लिमिट रखी तो उसके अंदर हमने अपने जो पुराने ग्रुप्स थे, हुँ, पुरानी टर्म्स के, सारे ग्रुप्स को ऐड कर लिया। तो हुँ, जाके जो मतलब यूनिक मेंबर जो बने, वो हुँ, 5000 हो गए थे पूरे। ओके। तो ये 5000 मेंबर्स अभी और बच्चे भी आ रहे हैं धीरे-धीरे करके क्वालीफायर के। हुँ, हुँ, हुँ। अभी अप्रॉक्स 30 के स्टूडेंट्स हैं डिग्री में, मतलब पूरे आईआईटीएम-पीएस के अंदर 30,000 स्टूडेंट्स हैं अभी के लिए। तो एक ठीक है, अभी जो इस टर्म में बंदा है, वो अगले टर्म में जो सब्जेक्ट ले रहा है, तो उसको तो एक गाइड मिल गया, रास्ता मिल गया कि हमें यहाँ से अब अगले टर्म में अगले सब्जेक्ट वाइज़ ग्रुप जॉइन करना है। लेकिन जो बिल्कुल फ्रेशर आते हैं, नए बंदे आते हैं, उनको आप फर्स्ट ग्रुप में कैसे लाते हो? कैसे अप्रोच करते हो? उस चीज़ के लिए हमने इनिशियली तो मैं सारे ग्रुप जैसे मैं डिग्री में भी डिप्लोमा में आ गया था, उसके बावजूद मैं हुँ, फाउंडेशन के ग्रुप बना रहा था उस टाइम भी। ओके। तो उस टाइम मैं फिर खुद हैंडल नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे को डिप्लोमा के कोर्सेज़ भी देखने थे, फाउंडेशन के भी देखने हुँ, थे। हुँ, तो हुँ, फिर अंकित आया, बीच में वो 2022 में मई हुँ, टर्म में या सितंबर टर्म में आया था अंकित, उनसे टेलीग्राम पे बात हुई, उन्होंने टेलीग्राम पे बनाए ग्रुप्स उन्होंने। तो हुँ, हुँ, टेलीग्राम पे क्वालीफायर ग्रुप बना रहा था, फिर धीरे-धीरे सुमित आया, 23 में हुँ, सुमित से बात हुई, तो 2022 के एंड में ही या 23 के स्टार्ट में सुमित से बात हुई थी। तो सुमित ने हुँ, फिर कहा कि मैं भी हैंडल करूँगा। तो फिर ग्रुप हुँ, मैं ही बनाता हूँ, अभी भी सुमित वगैरह हैंडल करते हैं, सुमित है, अचलदीप है। हुँ, ये लोग जो-जो फाउंडेशन में होते हैं, उनमें बच्चे हम क्योंकि अब हम भी डिग्री छोड़ के जाएँगे, तो हमें भी कोई और बंदा चाहिए जो उस चीज़ को हैंडल करे। हुँ, 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 तो इसलिए हमने फिर सुमित मिला उस चीज़ के लिए। उससे पहले अंकित हुँ, था, अंकित अब बिज़ी हो गया डिप्लोमा के अंदर, तो सुमित था, हुँ, सुमित हैंडल करता था अब, वो करता भी है अब भी। ओ ओके, ओके। तो बहुत अच्छा, ये तो आपने ग्रुप्स के बारे में बताया और इनका अगर इस वीडियो में जो नए देख रहे हैं जिनको नहीं पता है, अगर वो जानना चाहें तो मतलब जॉइन करना चाहें तो ऐसा कोई एक फिक्स लिंक है जो हमेशा आपके रहते हैं जिसके थ्रू आ जाएँ तो आपको हाँ, बाकी ग्रुप्स का कम्युनिटी वगैरह का लिंक तो वो है मैं लिंक। शेयर कर दूँगा ठीक है, पहले इसका और इश्यू ये था कि हम लोगों ने लिंक शेयर करी, लेकिन उससे हुँ, हम पहले लिंक साइट नहीं बनाई थी हमने। हम पहले लिंक हुँ, शेयर करते थे जस्ट एज़ व्हाट्सएप ग्रुप्स की, एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज में सारे ग्रुप की लिंक हुँ, लगा दी, जिसको जॉइन करना है कर लो। उससे क्या हुँ, हुआ कि बच्चों ने उस मैसेज को फॉरवर्ड कर के इतना फॉरवर्ड हो गया वो कि हुँ, पता नहीं कहाँ-कहाँ बाहर के कॉलेज वाले बच्चे भी आने लग गए थे, स्पैमर भी आने लग गए थे कि इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के कुछ दूसरे ओके, आने लग ओके, गए ओके। थे। तो हाँ, कुछ हाँ, ग्रुप हाँ, में स्पैमिंग भी हुई बहुत ज़्यादा स्टिकर की। तो ओके। फिर इस चीज़ का हुँ, रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए हमने जब साइट देखी थी हुँ, चैट्सो के अंदर साइट बनाई थी गूगल साइट, तो उससे सी हुँ,
चीज़ देखी है कि स्टैट्स में गूगल साइट बनाते हैं, तो ये हमने 2022 में स्टार्ट करी थी गूगल साइट बनानी, फर्स्ट टर्म के बाद ही। तो ओके। 2022 में ये मई में हमने गूगल साइट बनाई थी इनिशियली। हमने हुँ, डिप्लोमा का रिव्यू वगैरह भी डाला था और दूसरी चीज़ें भी लिखी थी हमने। साथ में हमने हुँ, साइट बनाई जिसमें हमने एक्सेसिबल कराया ओनली टू आईआईटी एमबीए स्टूडेंट। अगर आईआईटी एमबीए ओके, सब साइट से खोलोगे साइट तो आईडी से खोलोगे तभी खुलेगी, नहीं तो नहीं खुलेगी। ओके। तो उससे फिर रिस्ट्रिक्शन लगा जिससे बाहर के बच्चे नहीं आ पाए। हुँ, लेकिन फाउंडेशन लेकिन वालों को दिक्कत होगी। फाउंडेशन वालों को दिक्कत हुई इस चीज़ से। तो और हुँ, कुछ बच्चों को तब भी दिक्कत हो रही थी क्यों? क्योंकि वो लिंक को जब ओपन करते हैं, कुछ लोगों ने मोबाइल में साइन इन नहीं कर रखा होता। तो हाँ। मोबाइल में साइन इन होता है तो क्रोम में साइन इन नहीं होता उनकी आईआईटी एमबीए वाली हुँ, आईडी। हुँ, 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 तो हुँ, उनको प्रॉब्लम हुई लिंक खोलने में। वो लिंक हुँ, खोल नहीं पाते थे बार-बार कि अकाउंट सेलेक्ट कर रहे हैं, वो हो नहीं पा रहा था उनसे। हुँ, बार-बार हुँ, एरर 503 एरर कभी 400 अलग एरर दिखाता था उन्हें। तो उस हुँ, चीज़ के हुँ, लिए हमने अभी ये चीज़ लास्ट 2 टर्म पहले ही करी है मैंने। तो मैंने हुँ, उस चीज़ के लिए मतलब बहुत देखता रहा कि क्या चीज़ की जाए। तो मैंने फिर हुँ, अब एरर नहीं है उसका क्योंकि मैंने 2 साइट कर दी। अब 2 वेबसाइट खुलती हैं, एक फर्स्ट वेबसाइट है, जिसके अंदर हुँ, आपको बताता है कि आपको आईआईटी मेल आईडी से लॉगिन करना है, दिस इज़ द वेलकम पेज लिखना है। जिसमें लॉगिन ओके। हियर का बटन आता है, उस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दूसरी साइट खुलती थी, लेकिन उसमें भी एरर था कि बार-बार दूसरी साइट अलग तरह से खुल रही थी। उस चीज़ को हैंडल हुँ, करने के लिए फिर जो नई लिंक खुलती है, जिस लिंक पे हुँ, हम सिलेक्ट करते हैं अपने अकाउंट्स को, ओके, वो आज की जो लिंक खुलती है गूगल की जिसमें हम अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, वो लिंक डाली मैंने उसके अंदर। तो उस लिंक ओके, से हमेशा वही चीज़ खुलती है जहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट कर सकें। ओके। तो अब उसके अंदर कोई इश्यू नहीं है। फाउंडेशन वालों के लिए भी है तो अब उस चीज़ के लिए मेरी सुमित से भी बात हुई थी, सुमित कह रहा है एज ग्रेड पे डालेगा। सुमित ने भी एज ग्रेड स्टार्ट किया है, पहले स्टडीफाई था। तो हुँ, हुँ, मतलब उसने एक चीज़ इसलिए करी सुमित ने श्याम भैया के साथ मिलके, हुँ, उसने ये चीज़ करी कि जितने भी अब नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अब आप मान लो हुँ, डिप्लोमा में हो, लेकिन आपको डिग्री के कोर्सेज़ देखने हैं। आपका गेट हाँ, एग्ज़ाम है, आपको डिग्री एक्सेस करनी है। डिग्री में हुँ, एआई है, डीप लर्निंग है, उसका आपको पढ़ना है गेट एग्ज़ाम के लिए। हाँ, तो वो भी हाँ, आप पढ़ सकते हो। कैसे? हाँ, सुमित ने मतलब शशांक भैया ने बैकएंड डेवलपर है वो हुँ, क्यूम एनालिटिक्स में। तो उन्होंने दोनों ने मिलके पहले सर्टिफ़ाई बनाया जिसके अंदर सारे लेक्चर्स, सारे नोट्स हुँ, जो ऑलरेडी अवेलेबल थे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स, जो हमने अलग हुँ, साइट पे बना रखी थी। नोट्स हुँ, थे, हुँ, नोट्स को भी और प्रीवियस ईयर पेपर को इन अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू कोर्सेज़। हुँ, तो उन सबको ने और ऑर्गनाइज़ कर दिया। मैंने ऑर्गनाइज़ किया था। उन्होंने मेरे ऑर्गनाइज़ वाले कंटेंट को उठाया और उसको थोड़ा-सा हुँ, और ऑर्गनाइज़ कर दिया, सेगमेंट कर दिया कोर्सेज़ को और एक ही जगह पर ले हुँ, आया सर्टिफ़ाई पे। लेकिन सर्टिफ़ाई में कुछ ओ इश्यूज़ हो गए थे बीच में तो फिर वो चीज़ बंद करके एज ग्रेड लाए दोबारा। ओके। तो एज ग्रेड के अंदर ही सब कुछ इंटीग्रेटेड रहेगा, यानी कि आईआईटी बेस्ड ग्रुप्स भी रहेंगे व्हाट्सएप ग्रुप हुँ, और हुँ, आपका नोट्स भी रहेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी रहेंगे, साथ में आपके हुँ, प्रीवियस ईयर पेपर कैलकुलेटर लेक्चर्स भी भी रहेगा, हैं, लेक्चर्स भी रहेंगे, कैलकुलेटर भी कैलकुलेटर है। भी रहेगा और हुँ, लेक्चर्स जो होंगे आपको सारे एक्सेसिबल होंगे लेक्चर्स। हुँ, जो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं जिन्होंने टर्म 1 के हैं, जिन्होंने आईआईटी हुँ, भी ज्वाइन नहीं करा अभी, पर्सनल हुँ, आईडी से वो सिर्फ फाउंडेशन के ही कोर्सेज़ एक्सेस कर पाएँगे। बाकी आगे ओके, के कोर्सेज़ टर्म 2 वाले कोर्सेज़ जो होते हैं स्टैट्स 2, मैथ्स 2, इंग्लिश 2 एंड पाइथन, वो सारे हुँ, ओनली एनरोल्ड कोर्स स्टूडेंट्स एक्सेस कर पाएँगे। तो उनको आईआईटी ओके, एमबीए आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन करते ही वो सारे एक्सेस कर पाएँगे, सारे कोर्सेज़ और बढ़िया, वो डिप्लोमा के कोर्सेज़ भी एक्सेस कर पाएँगे, डिप्लोमा के भी, डिग्री के भी। जो उनसे भी एक्सेस करना है वो कर सकते हैं। बढ़िया, बढ़िया। तो ये जो आपका ये इनिशिएटिव है मतलब इसको एक भगीरथ प्रयास ही कह सकते हैं जैसे भगीरथ जो है ले आया वैसे इतने लोगों को एक साथ ज्वाइन कराना और कम्युनिटी और ये बनाना और चलना क्योंकि एक ग्रुप ही नहीं मैनेज हो पाता कोई अगर एक ग्रुप का एडमिन है तो उस ग्रुप में ही नहीं देख पाता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके एब्सेंट में और आप इतना बड़ा जो है सब कुछ मैनेज कर रहे हो इस तो बहुत ही बड़े उसकी बात है। अकेला मैं नहीं मतलब मेरे साथ श्री कृष्णा भैया हैं, आदित्य हैं, ऋषिक भैया हाँ, हैं, अविरल है, सुमित भी है, बीच में चलदीप वगैरह भी है, सुमित दूसरे बंदे को एडमिन बना देता है, तो सब लोग मिलके ही कर रहे हैं। और ग्रुप से एक चीज़ है कि ग्रुप्स हमारे से नहीं है, हम एडमिन है, हमसे ग्रुप नहीं है, ग्रुप स्टूडेंट्स से है। हुँ, स्टूडेंट्स की हुँ। हेल्प हो रही है उसके अंदर, आपस में डिस्कशन हो पा रहा है, अपने पॉइंट्स रख पा रहे हैं। नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन फिर भी ग्रुप में एक जो है डिसिप्लिन बना के रखना कि उस वो बड़ी मेन चीज़ है। अदरवाइज़ ऑर्गनाइज़ करना और डिसिप्लिन बना के रखना, नहीं तो वो फिर कुछ उससे फ़ायदा वो नहीं होता लोगों को। फ़ायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें एक डिसिप्लिन मेंटेन है। तो इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है लोगों को और अगर आपको कुछ किसी का बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीडबैक वगैरह मिला हो कि फ़ायदा तो सबको हो रहा है, बहुतों को हो रहा है। तो
ऐसा कुछ शेयर करना चाहेंगे? किसी ने बहुत ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया हो कि इस ग्रुप से उसको बहुत ऐसा कुछ एक्सपीरियंस जो आपको शेयर किया हो किसी ने? नहीं, ऐसा तो नहीं एग्ज़ैक्टली याद तो नहीं, क्योंकि जब ग्रुप्स एंड होते हैं, टर्म एंड होती है, हुँ, तो हमने इनिशियली देखा था कि उसी ग्रुप को रखें या नया ग्रुप बनाएँ। नए ग्रुप बना हुँ, रहे थे हम, तो हमने उस ग्रुप को क्लोज़ कर दिया था। तो बट कुछ लोग लीव भी कर रहे थे, लीव करते हुए बच्चे लिख के जाते थे मैसेज कि थैंक यू फॉर दिस, मतलब थैंक यू एवरीवन हू हैज़ हेल्प्ड इन द ग्रुप। तो वो ग्रुप या के मतलब जिन्होंने भी हेल्प करी कोर्स के अंदर एक-दूसरे को, तो हुँ, उसको हुँ, थैंकफुल करके वो लीव कर देते। तो इट्स टाइम ओके। टू जॉइन। तो वैसे ही है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं चीज़ में। और बाकी नोट्स के लिए उम्मीद बच्चों ने बोला है। नोट्स के लिए बोला है बच्चों नोट्स ने कि क्योंकि आईआईटीएम-बीएस नोट्स वाली, क्योंकि उसकी कुणाल की वेबसाइट थी ओपन नोट्स, जो बहुत बार हुँ, एक्सेसिबल नहीं हो पाई बच्चों से। अच्छा, अच्छा। तो उसके अंदर इश्यू आया, एंड एग्ज़ाम के टाइम उनको इश्यू आया, तो वो एक्सेस एक्सेस नहीं कर पाए। तभी मैंने तुरंत टेलीग्राफ.ph पे बनाया था। फिर टेलीग्राफ.ph क्विज़ से पहले ही, क्विज़ या फिर एंटम से पहले हो गया था। पीवाईक्यूज़ भी सारे मिल जाते हैं, पीवाईक्यूज़ अगर कोई हाँ, देखना पीवाईक्यूज़ चाहे। भी सारे मिल जाते हैं, वो मैंने देख के बच्चों से बात-वात करके कि अपने टर्म के शेयर कर दो आप, तो वो चीज़ देख के मैंने वहाँ से डालना शुरू करी। तो हम ये उम्मीद भी कर सकते हैं कि इसके बारे में मतलब कॉलेज में भी एडमिन को भी पता होगा पीओडी वगैरह जो भी है, फैकल्टी। पता है या नहीं, आई थिंक पता होगा ऑलरेडी, लेकिन हुँ, वो इस चीज़ पे देखना चाहे तो देख सकते हैं, तो नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अनऑफ़िशियली रखना चाहते हैं इसको, क्योंकि हुँ, हुँ, ऑफ़िशियली इसके अंदर बहुत हेडेक आ जाएगी अलग से कि ये भी करना है, वो भी करना है। तो बेटर हुँ, ये समझ चीज़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। अनऑफ़िशियल रहे तो सबके लिए हम काम वर्क कर सकते हैं इज़िली। अदरवाइज़ रूल्स ओके, आ जाते हैं, रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। अब मैं हाउस का सेक्रेटरी ओके। रह के देख चुका कि उसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप लिमिटेशन में हो। आप किस हाउस में थे सेक्रेटरी? मैं बंदीपुर में था, सेक्रेटरी था मैं, अच्छा, सेकंड अच्छा, सेक्रेटरी था अच्छा, बंदीपुर का। अच्छा, अच्छा। तो मैं देख तो चुका वो अच्छी बात। चीज़, क्योंकि उसके अंदर आपकी रिस्ट्रिक्शन रहती है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अच्छा, आप लिंक शेयर नहीं कर सकते। तो वो चीज़ के लिए मैंने कहा कि बेटर है कि इसको अनऑफ़िशियली रखें, अनऑफ़िशियल रखेंगे तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हमें पता है हम गलत नहीं करेंगे, हुँ, हुँ। लेकिन हमें ब जो हम चाहें वो कर सकते हैं। हमें रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ठीक किसी है। की।